Okay, let's quickly do some MCQ first, then we will discuss simulations. Okay, we are doing MCQs of Unit 1 or Unit 2 right now? Okay, so like we have done, I think 5 from Unit 1 yesterday and 5 Yes. from Unit 2. Yes. Let's do some more because. From Unit 1 and 2 only, na? I'm just asking that. Okay, okay, yes. Okay, because I have All- not started Unit 3 yet. Okay, okay, no worries. पहले ये कर लेते हैं फर्स्ट और 2 की प्रैक्टिस देन 3 की कर लेंगे. ठीक है. Okay, first question. According to the professional standard, which of the following is not required of CPA performing a consulting engagement? So, if you are performing a non-attest engagement, that is consulting engagement, then which is not required here? Maintaining independence from the client. Okay, yes, correct. So, since this is a non-attest engagement, that means independence is not required here. Okay. सो कंसल्टिंग सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने ही पड़ेंगे. यू हैव टू टेक लाइक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब आप जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में आपको बेसिक पता तो होना चाहिए कि क्या नेचर, स्कोप और लिमिटेशंस रहने वाली है. देन सुपरवाइजिंग स्टाफ हु आर असाइंड टू द एंगेजमेंट, तो सुपरविजन भी जरूरी है बट इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. ओके. Yes. Okay, next question. The primary purpose of establishing a quality management system for deciding whether to accept a new client is to. एक सेकंड ना मैम. Okay. Satisfy the CPA firm's duty to the public concerning the acceptance of new client. Okay. It's incorrect. Okay, the question was the primary purpose of establishing a quality management system for deciding. So you have some quality standard for a CPA firm in which you have one of the standard that is like deciding whether to accept a new client is true. So to enable the CPA firm to the reliability of the client, satisfy the CPA firm duty to the public concerning the acceptance of new client, minimize the likelihood of association with client whose management lack integrity, or anticipate the before performing any field work whether an unmodified opinion can be expressed. Okay. So basically client को accept करना है या नहीं करना, तो ये सिस्टम आपको बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स क्या अलाउ करते हैं कि आप क्लाइंट की रिलायबिलिटी चेक कर रहे हो. इसके थ्रू बेसिकली यू आर सेटिस्फाइंग द सीपीए फॉर्म ड्यूटी टू द पब्लिक कंसर्निंग कि बेसिकली यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, सो दिस इज योर ड्यूटी दैट you have to satisfy your public that like you are accepting the client like who has like basically you are accepting the clients and you are accountable to the publics. नेक्स्ट ऑप्शन स्टेटेड यू टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड कि आप लाइक उन मैनेजमेंट के साथ ना इन्वॉल्व हो कि जो उनकी इंटेग्रिटी कम है. सो बेसिकली दी स्टैंडर्ड अलाउ यू टू कि आप उन्हीं सिर्फ क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करो जिनकी इंटेग्रिटी है मैनेजमेंट की.
या यू आर डिसाइडिंग बिफोर फील्ड वर्क कि आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो या नहीं. सो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है कि फील्ड हाँ वर्क से पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जा सकता है या नहीं. आउट ऑफ दिस आपका सेकेंड भी इनकरेक्ट है. बेसिकली आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उससे पब्लिक का तो कोई लाइक लेना देना नहीं हुआ. उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में से आपको क्या लगता है कि आप रिलायबिलिटी या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी चेक कर रहे हो? इंटेग्रिटी चेक करनी होती है. यस, बिकॉज आप एक्सेप्ट करने से पहले चेक करते हो ना कि मैनेजमेंट रिलायबल है, सॉरी मैनेजमेंट इंटेग्रिटी फॉलो करती है या नहीं करती, कि वो आपको सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी है या नहीं है, या जो भी रिकॉर्ड्स हैं कहीं पर लाइक स्कोप लिमिटेशन तो नहीं वो लगा रही. सो ये सब चीजें आप चेक करते हो और आपकी ये पॉलिसीज और प्रोसीजर जो सेटअप किए गए हैं दैट अलाउ सम क्राइटेरिया टू डिसाइड कि क्या क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. सो योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस. इज इट Okay. क्लियर? हाँ. Okay, next question. In which of the following situation would an auditor who is rendering an audit opinion on the financial statement of an employee benefit plan that is filed with Department of Labor can be considered independent? So if you are doing employment benefit plan related audit, कि जैसे आपके ये प्लान्स होते हैं ना, आपके हाँ. पेंशन प्लान्स हो गए, लाइक एम्प्लॉय के लिए जो भी बेनिफिट प्लान होते हैं, तो अगर आप एज एन ऑडिटर आप उस प्लान्स की ऑडिट कर रहे हो, सो उस केस में आप इंडिपेंडेंट कब कंसीडर करोगे? किस केस में यू आर इंडिपेंडेंट? द ऑडिटर ऑब्टेन अ मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कि अगर आपका मटेरियल इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, ऑडिटर के स्पाउस का इमटेरियल डायरेक्ट इंटरेस्ट है, या member of the auditor firm has an investment advisor to the employment benefit plan during the period of professional engagement but was not providing services as of the date of opinion. कि अगर कोई ऑडिटर फर्म का मेंबर जो है उस प्लान के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना हुआ है, लाइक इज आल्सो परफॉर्मिंग सम एडवाइजरी सर्विसेज, ओके, हाँ. बट नॉट वाज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एज ऑफ द डेट ऑफ ओपिनियन, कि वो पहले तो प्रोवाइड करता था लेकिन अब जब आप लाइक ऑडिट कर रहे हो तो उस केस उस टाइम पर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा सर्विसेज. या एक मेंबर जो है वोटिंग ट्रस्टी है प्लान का बट सिंस डिसोसिएटेड फ्रॉम द प्लान एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उसको डिसोसिएट कर दिया गया, मतलब अब आप उसको एंगेजमेंट टीम में नहीं ले रहे बट ही वाज अ वोटिंग ट्रस्टी. क्लाइंट के केस में वो वोटिंग ट्रस्टी रहा है और आपके केस में एंगेजमेंट में अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. सो किस केस में आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट होगा ऑडिटर? ऑप्शन 4. ऑप्शन 4, आर यू श्योर? हाँ. ओके, एक बार देख लो बाकी ऑप्शंस भी. ऑप्शन 4. ओके, ओके, इट इज करेक्ट. सो द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके इंडिपेंडेंस रिलेटेड रूल्स दिए गए थे. विद अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट दैट योर इंडिपेंडेंस विल बी impaired if during the period of professional engagement at the date of the opinion or during the period covered by the financial statement the auditor or covered member has a direct and material like indirect financial interest in the plan. So independence will still be maintained if the member was a voting trustee in the prior year and they have been dissociated from doing the audit. So in this case, he can be considered independent. But अगर आपका कोई material इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है या कोई डायरेक्ट इमटेरियल इंटरेस्ट है तो उस केस में तो आपकी इंडिपेंडेंस लाइक इम्पेयर होगी ही होगी. और नेक्स्ट थिंग कि अगर आपका कोई मेंबर जो है प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू द क्लाइंट, सो उस केस में भी आपकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर होगी. बट अगर आप
का मेंबर वोटिंग ट्रस्टी रहा है प्रायर ईयर में और यू आर डिसोसिएटिंग दैट मेंबर फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, देन उस केस में आपकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर नहीं होगी. ओके. हाँ. Okay, so let's do the next question. A successor auditor ordinarily should request to review the predecessor working paper related to. So you can review the working paper of predecessor auditor relating to contingency or internal controls. Contingency, yes. Internal control, yes. Third option. Okay, sorry. Correct. ठीक है, तो successor auditor should ask the client to authorize the predecessor to allow the successor auditor to review the predecessor's working paper related to contingency, or you can also check their working paper related to the internal controls. Okay. Okay, let's do next question. Which of the following matter is an auditor required to communicate to the audit committee? तो आप कौन से मैटर को ऑडिट कमेटी से डिस्कस कर सकते हो? Both the options. ओके, सो डिसएग्रीमेंट अगर कोई हुआ है, चाहे वो सॉल्व भी हो चुका है, तभी भी आप ये डिस्कस कर सकते हो, और कोई फाइंडिंग्स अगर आपको मिली है जो सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट है, सो तो बोथ ऑफ दीस यू कैन डिस्कस विद योर ऑडिट कमिटी. ओके. Yes. Next question. Under PCAOB auditing standard, the auditor should complete the final set of audit documentation within how many days? So if you are filing, like you are doing the audit according to your PCAOB standard, means आप पब्लिक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स कितने दिन में कंप्लीट करने होते हैं? 45 days. 45 days. Okay. Oh no, 45 ऑप्शन ही नहीं है. Second, so 30 days. 30 डेज तो नहीं होते. ओके, 14 या 16 में से होगा. 60 डेज नॉन इश्यूअर्स का होता है ना? एक मिनट, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है बराबर? Yes, complete the final set of audit documentation following the report release date. एक सेकंड. थर्टी डेज ही होगा. I think 14 days will be correct answer, क्योंकि 14 days होते हैं आपके ये. Yes. So a complete and final set of audit documentation should be assembled for retention as of the date not more than 14 days after the report release date. Okay, so report release date के बाद 14 days के अंदर अंदर आप उस documents को आपको मतलब set finally complete करने होते हैं to take it for retention. और नॉन इशूअर के लिए? नॉन इश्यूअर्स के लिए ऐसा कुछ रिटेंशन वाला तो है नहीं, बट 60 डेज है कि कंप्लीट करने हैं आपको 60 डेज के अंदर अंदर उसे. ठीक है. और इश्यूअर्स के केस में वो 45 डेज होता है कि कंप्लीट करने के लिए. ओके. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड a successor auditor ask the predecessor auditor to provide after accepting an audit engagement? So आप आफ्टर एक्सेप्टेंस आप प्रीडेसर ऑडिटर से क्या ले सकते हो, मतलब क्या इंक्वायरी कर सकते हो क्या?
पूछ सकते हो method that facilitate the evaluation, procedure, auditor understanding of the reason for change in of auditor, fact about predecessor that might bear on integrity of management, any disagreements. So क्या लगता है आपको कौन सी इंक्वायरीज या कौन से मैटर आपको आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट डिस्कस कर सकते हो आप प्रेडेसर से? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं. Matters that may facilitate the evaluation of financial reporting consistency between the current and previous years. ओके, श्योर? हाँ. यस, करेक्ट. सो बेसिकली बाकी चीजें ये बिफोर एक्सेप्टेंस आप इंक्वायरी करते हो कि प्रीडेसर ऑडिटर की क्या मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या लाइक अंडरस्टैंडिंग है, कोई डिसएग्रीमेंट अगर हुआ है या कोई उसे फ्रॉड रिलेटेड चीजें पता है या उसके अकॉर्डिंग क्या रीजन है चेंज करने का ऑडिटर को कि उसको ना ऑडिट देकर अब न्यू ऑडिटर उन्होंने अपॉइंट किया है. बट बाकी मैटर्स आप उससे आफ्टर एक्सेप्टेंस डिस्कस कर सकते हो. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है द AICPA काउंसिल अंडर रूल 201 and 202 the code of conduct has given the PCAOB authority to promulgate auditing and related attestation standard and ethics independence and other standard to which of the following parties? So Public PCAOB, companies issue. okay, so PCAOB किसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड देकर चलती है? पब्लिक कंपनीज के रिगार्डिंग. ओके, ठीक है. आपका अगला, when communicating to TCWG the objective of auditor do not include. तो जब आप TCWG से कम्युनिकेट कर रहे हो so what should not be your objective? नॉट बताना है आपको, ये ऑप्शंस है. To provide pay rate and audit estimation to TCWG. Option 2. लेकिन अपनी फीस और लाइक टाइमिंग तो आप डिस्कस कर सकते हो ऑडिट कमेटी से या TCWG से. ऑडिट कमेटी के साथ ना, TCWG के साथ हम वो TCWG, ओके. सो ऑडिट कमेटी अगर नहीं बनी होती तो आप TCWG से ही डिस्कस करके चलते हो चीजें, ओके. क्योंकि ऑडिट कमेटी इश्योर्स के केस में मैंडेटरी है. नॉन इश्योर के केस में देयर मे बी नॉट एनी ऑडिट कमेटी. ठीक है. वो टू प्रोवाइड पे रेट. ओके, ठीक है. आपने सारे पढ़ लिए? हाँ. ठीक है, लेकिन पे रेट और ऑडिट एस्टिमेशन तो डिस्कस कर सकते हैं ऑडिटर. लेकिन ठीक है आपको, बट पे रेट और ये चीजें ऑडिट कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं. सो बट फर्स्टली मैनेजमेंट से डिस्कस होता है ना पे रेट, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी ऑडिट मतलब अच्छा, ऑडिट एस्टिमेशन भी मतलब मैनेजमेंट है जो हमें पे कर रहा है, हमें अपॉइंट कर रहा है. नहीं, अपॉइंट आपको ऑडिट कमेटी ही करके चलती है. ओके. हम्म, ओके. सो ठीक है, आपका करेक्ट है ये आंसर, बट स्टिल मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में. ठीक है. एक बार फिर भी चेक करूंगी मैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. दी, अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, पूछूं या स्किप करना अभी के लिए?
पढ़ा पूछ आपने? लो, पर ट्राई तो कर लेते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिस्ट सेवरल थ्रेट टू इंडिपेंडेंट. A structural threat is defined as, it is your structural threat when an audit organization placement within a government entity will impact their ability to perform work and report results objectively, when due to the long or close relationship with the management or other personnel, the auditor will be too sympathetic or accepting the of work, external influences or pressure that will impact the auditor ability to make independent and objective judgment, or the threat that result from auditor taking the role of management. So आपको structural threat को define करना है basically. तो ठीक है, आपका गवर्नमेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड इतना नहीं है. Option 4, the threat that result from an auditor taking on the role of management. Okay, so are you sure? हाँ. चलो देखते हैं. ये when an audit placement within a government entity will impact their. आपको ए ऑप्शन मतलब नहीं लगा कुछ भी ए ऑप्शन में? ऑप्शन ए. मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपको ए बी में से नहीं लगा? मतलब बी है, बट स्ट्रक्चरल थ्रेट मोस्टली ये हो जाएगा ना कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की लेके मैं कर रही हूँ. ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, बट मुझे ज्यादा ऑप्शन 4 मतलब डी लग रहा है. ओके. So let's see. Incorrect. So a structural threat is the threat that an audit organization placement within a government entity in combination with the structure of the government entity being audited. ठीक है कि basically it is a situation where an auditor independent is basically affected by their position within the audit entity, like if they have having any kind of interest, like any financial, any self review, any bias, familiarity. So this option C will be correct, that when an audit organization placement within a government entity will impact their ability to perform and work report result ऑब्जेक्टिवली, कि ड्यू टू सम पोजीशन अगर कोई थ्रेट क्रिएट हो मींस आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है, सो डेट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल थ्रेट. ओके. ओके. हाँ. तो ये थे आपके एमसीक्यूज. इस पे अब Yes. सिमुलेशन करते हैं कोई. ठीक है. ओके. ठीक है, ये आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है. The audit team is under a lot of pressure to complete the audit on schedule and under budget. J. Rabbit suggests that the team is spending too much time documenting their work and it is really unnecessary to cross reference all the work paper. Meanwhile, Margot twice feels that it is important that the team follow procedure they have been trained on regardless of the amount of the time required. She feels if the team fails to properly document their audit work, it could result in deficiency in the audit and failure to detect a material misstatement in the financial statement. So read the conversation that is occurring between these two people, and in the table you have to answer the following question and cite the relevant
section did support your response. So basically आपको बताना है कि अब आपकी ये कुछ कन्वर्सेशन दे रखी है दो पार्टीज के बीच की, और ये स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं AICPA जो रिलीज करता है। सो आपको बताना है इसके केस में कि इन पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए और कौन से स्टैंडर्ड इस रिस्पॉन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आप ये पढ़ो, फिर आपको हाँ एग्जिबिट दिखाती हूँ। ठीक है। हाँ रीड कर लिया। ओके ठीक है, दिखाऊं अब आपको वो हाँ एग्जिबिट को। ठीक है, ये कन्वर्सेशन है आपकी बिटवीन ऑडिट टीम मेंबर। ठीक है। ऊपर इसे पढ़ो। हाँ पढ़ लिया। ओके सो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ड्यू प्रोफेशनल केयर रिक्वायर्ड द ऑडिटर टू एक्सरसाइज। सो आपका ड्यू प्रोफेशनल केयर स्टैंडर्ड क्या कहते हैं बेसिकली? क्लियर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्पिटेंसी। ड्यू प्रोफेशनल केयर। कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी। हाँ आपके आपने गैस स्टैंडर्ड पढ़े 10 के 10? नहीं हम्म। शायद तो नहीं पढ़े मैंने। अच्छा, आपके इसमें एथिक्स में ही आते हैं वो। आप जब ऑडिट परफॉर्म करते हो एज पर गैस स्टैंडर्ड, तो आपके 10 स्टैंडर्ड्स होते हैं। जनरल, ओके। लाइक जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं 3, दैट इज ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट इज योर इंटेग्रिटी, ड्यू प्रोफेशनल केयर। हाँ हाँ ये सब हाँ ऐसे पढ़े हैं। हाँ,
और फिर आपके फील्ड वर्क स्टैंडर्ड होते हैं। तो उसके केस में आपकी ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी में कवर होगा कॉम्पिटेंसी, लेकिन ड्यू प्रोफेशनल केयर में कॉम्पिटेंसी थोड़ी कवर होगा। तो कॉम्पिटेंसी तो कंप्लीटली ही रॉन्ग है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी या क्लियर कम्युनिकेशन, ड्यू प्रोफेशनल केयर। ड्यू प्रोफेशनल केयर क्या होता है, मतलब ऐसे मैं पूछ रही हूँ। लाइक आपको प्रोफेशनली लाइक केयरफुली अपना वर्क परफॉर्म करना होगा, और बाकी मैंने आपको बता दिया तो वो सीधा आंसर ही मिल जाएगा आपको। जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन रखनी होगी। क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, श्योर। हाँ। ठीक है। ओके, अब आपको एयूसी मतलब कॉडिफिकेशन ढूंढना है कि कौन सा इसे स्पॉट कर रहा है। ये है आपके प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, preparation and fair presentation, ethical requirement, professional judgment. प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, पक्का? हाँ। चलो, कौन सा था वो, चेक किया था? और नहीं, मैं भी देखना भूल गई। ये फील्ड वर्क स्टैंडर्ड में आता है वैसे प्रोफेशनल जजमेंट। 200A33। 208-33। ओके। Okay, which of the following statement represent Margot's best argument based on the auditing standard? See, the audit team should compromise on quality of work to complete the audit. Proper documentation are not an essential part. The audit team should follow the procedure they have been trained on regardless of amount of time the work require, or cutting corner is an acceptable approach to balancing time and budget. So उस communication के according आपको क्या लगता है कि what approach should they need to follow? और वो ऑप्शन से शो करना ना, हम्म, ऑप्शंस जो थे ना, 4 ऑप्शन। अच्छा, आपने ये पढ़ रखा है अच्छे से क्योंकि हाँ, मैंने ये नहीं पढ़ पढ़ा रखा है। है। ठीक है, चलो ये देखो ऑप्शंस हैं आपके, ये देखो। और क्वेश्चन ये ऑप्शन 3। audit team should follow the procedure they have been trained of. नहीं Okay, नहीं, cutting corners is an acceptable approach to balancing time and budget constraint with audit quality. ओके, पढ़ना आपको वो एक बार कन्वर्सेशन। हाँ, एक बार पढ़ लेती हूँ। So Jay is saying that, hey Margot, I think we are spending too much time on documenting our work. It is really unnecessary to cross-reference all work paper. So I disagree, Jay. Following the proper documentation is an essential part of audit process. So we have been trained to follow this procedure, and we should follow them regardless of the amount. But Margot, we are under a lot of pressure to complete the audit on schedule and under budget. We can't afford to spend too much time in documenting our work. So I understand, but we can't compromise on quality of the work. If we fail to properly document our audit work, it could result in deficiency in the audit and failure to detect material misstatement. So I see your point, but what is the harm in cutting corner a little bit? It will help us finish the audit on time and stay within our budget.
So cutting corner is not an option. It is our responsibility to ensure that financial statements are fairly presented and did we comply with the relevant auditing standard and regulations. So if we do not follow proper procedure, we could be held liable for any deficiencies. So okay, I understand your concern, but we need to find a way to balance our time and budget constraint with our responsibility to perform a high quality audit. So I agree, let's work together to find a solution that meet our time and budget constraint while still ensuring that we follow the proper audit procedure and document our work appropriately. So आपको मार्गोट की बेस्ट लाइक आर्ग्यूमेंट बतानी मार्गो के साइड से है। ठीक है। और वो ऑप्शंस पे आ जाता है। Yes. So, which of the following statement represent the Margot's best argument based on auditing standard? ऑप्शन 3। Okay, ठीक है। Okay, done. कर दो select here. Okay, और आपकी codification इससे regarding internal control तो है नहीं तो ऊपर में से लिख लो। प्रोफेशनल जजमेंट। Okay, are you sure? हाँ। और फर्स्ट वाले का ड्यू केयर वाला चेंज करना पड़ेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। Okay, कौन सा अभी के लिए आपने कौन सा चूज किया इनमें से? A200 A33। ये कौन हाँ। सा बी का ही है? हाँ। अच्छा, और ए के लिए? वो एक बार चेक करना पड़ेगा उसमें एग्जिबिट में। अच्छा, ठीक है। एक बार ये भी देख लो फिर चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट? सो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है। ओके, so they are only required for sufficient significant transaction and balances. They are not required for preliminary or inconclusive findings. They do not need to be prepared in a timely manner, or they include sufficient information to enable an experienced auditor having no prior connection with the audit to understand the nature, extent, and result of audit procedure performed. दे शुड मतलब फोर्थ ऑप्शन 4। ठीक है, और अब इन दोनों के रिगार्डिंग आप कॉडिफिकेशन बताना मुझे। ठीक है। ठीक है, देख लो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना मतलब नीचे वाले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ठीक है। इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग तो कुछ आया नहीं इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया। ओके। A20 और A33। A33 और उसका A20। हाँ। अच्छा,
ठीक है, ओके, कुछ चेंज करना है या सबमिट करूं? सबमिट। कल से बेटर आया 66%। ये देखो कॉम्पिटेंसी राइट था मेरा। बट ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी में आपकी कॉम्पिटेंसी इंक्लूड होती है। बट कॉम्पिटेंसी मतलब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। कॉम्पिटेंसी बेसिकली ऑडिट में आपके लाइक एजुकेशन रिगार्डिंग होते हैं कॉम्पिटेंट। एक सेकेंड को, हाँ, कॉम्पिटेंसी आपकी ट्रेनिंग में आना चाहिए। ड्यू प्रोफेशनल केयर, competency and critical thinking are good skill to have, but they are not explicitly identified in due care standards. अच्छा, चलो एक बार ये चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कि गैस स्टैंडर्ड में कॉम्पिटेंसी अलग, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी में कवर होती है। ठीक है। अगला, अच्छा, इसका कॉडिफिकेशन गलत है। हाँ। का बी का K20 आना था। ड्यू केयर। Importance of the following proper audit procedure and documentation requirements. So she is disagreed with Jay's suggestion of cutting corner and compromising the quality of their work. So taking shortcut to would violate the auditor obligation to discharge professional responsibility with competence. ठीक है, बाकी आपका थर्ड करेक्ट है, ये दो गलत हैं। ओके, हाँ। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। बस खाली आप वो क्लियर कर लेना कॉम्पिटेंसी वाला। ठीक है, एक बार मुझे याद भी दिला देना। ठीक है। हम आज के लिए यहाँ पे एंड करें। ये आपका वैसे पूरा तो नहीं होगा, आगे स्किप भी नहीं कर सकते हो फिर। एग्जिट कर सकते हो डायरेक्ट। एक मिनट रुको, अगला चेक कर लेते हैं, अगर छोटा है तो उसे कर लेते हैं। हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एंगेजमेंट लेटर है। सो यू हैव टू रिवाइज दिस एंगेजमेंट लेटर बाय क्लिकिंग द ईच सेगमेंट एंड सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज क्या बेसिकली यूज होना चाहिए। ठीक है, सो ये है आपका बेसिकली एंगेजमेंट लेटर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको एज एन अकाउंटेंट आपको अपॉइंट किया गया है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो और ये उसका एंगेजमेंट लेटर है। So ओके। management has requested that we prepare the financial statement of CPR which comprises the balance sheet, related statement of income, change in stockholder equity, cash flow for the year then ended and the related cash flow. क्या लगता है आपको, कैश फ्लोज आने चाहिए दोबारा या कोई और रिलेटेड रिटेन अर्निंग नोट्स? नोट टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है, वी आर प्लीज टू कंफर्म आवर एक्सेप्टेंस एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंगेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आवर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग या ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, रिक्वायरमेंट एंड कमिटमेंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, श्योर? हाँ। ये एक सेकंड रुको, मुझे वो सेंटेंस वापस रीड कर दो। वी आर प्लीज टू कंफर्म आवर एक्सेप्टेंस
and the responsibility of this engagement to prepare the financial statement by means of this letter. हाँ. Okay, our responsibilities. So the objective of our engagement is to supervise management in accordance with statement on auditing standard based on information provided by internal audit. Chalo. Your objective is to basically supervise, prepare, draft. Statement. Prepare financial statement. Yes. Okay, or standards. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे या कोई और? नहीं ऑडिटिंग तो नहीं यूज करेंगे. अटेस्टेशन एंगेजमेंट नहीं अटेस्टेशन नहीं आएगा. अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज सार्स. यस, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे आपके. ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंटरनल ऑडिट और प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट. Information basically prepared by management, review, compiled, provided by you, approved by the audit committee. नहीं वो नहीं आएगा. ऑडिट नहीं है ये, प्रिपरेशन है. Based on information provided by management. हाँ, provided by management basically. वैसे इसमें prepared by provided नहीं. management है. हाँ, तो prepared by management. Okay, next. Okay. We will conduct our engagement in accordance with. अच्छा, क्या है? सॉरी, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड्स बताने थे. आपको ऑडिटिंग या रिव्यू स्टैंडर्ड्स नहीं बताने थे. तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट चूज करो. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड्स बताने थे. Accounting principle generally accepted in the USA. Yes. उसके बाद है आपके you are performing your engagement in accordance with which standards? GAAP standards. आपके स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे? नहीं मैं कंफ्यूज हुई. वो थे आपकी प्रिपरेशन. आप किस अकॉर्डिंग करोगे फाइनेंशियल्स की, और अब प्रिपरेशन एंगेजमेंट में आपके स्टैंडर्ड्स कौन से आएंगे? तो यहाँ पे सार्स आएगा और वहाँ पे वो गैप आ रहा था बराबर ऐसा. हाँ, तो यहाँ सार स्टैंडर्ड्स आएंगे. और सार स्टैंडर्ड इशू कौन करते हैं? Accounting and Review Services Committee of AICPA. Okay, so and comply with AICPA generally accepted accounting principle, including the ethical principle of integrity and objectivity. AICPA के कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे साथ में आप? Code of Professional Conduct. ओके, पक्का? नहीं, प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं है. Statements on standards for preparation engagement. Financial statement वाला last option. Okay. Including the ethical principle of integrity and objectivity. Ethical principle. कौन से फॉलो करोगे? Integrity and objectivity. Integrity and objectivity. हाँ. Okay. Originally text. Okay. So next, we are not required to and will not verify the accuracy of information you will provide to us or the engagement or otherwise gather evidence for the purpose of expressing an opinion or conclusion. Accuracy check
नहीं करनी आपको, या इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, सफिशिएंसी, क्या वर्ड आना चाहिए बेसिकली? सफिशिएंसी, ओके, ऊपर के वर्ड दिखाना। हाँ सफिशिएंसी। ठीक है, सफिशिएंसी या एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस? कंप्लीटनेस आना चाहिए। खाली कंप्लीटनेस, देखो सारे वर्ड सिमिलर से हैं। खाली हाँ। कंप्लीटनेस, खाली एक्यूरेसी, वैसे इतना टफ नहीं आएगा, डोंट वरी। आपके एग्जाम में आएगा तो ऑडिट से रिलेटेड ही आएगा। इतने मतलब इतनी उसमें डिटेल में वर्डिंग्स नहीं आएंगी कि जैसे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, सफिशिएंसी। बट एंगेजमेंट लेटर से आ सकता है कि आपको मिस्टेक्स बतानी हो एंगेजमेंट लेटर में। तो क्या लग रहा है आपको? सब वर्ड्स का इनडायरेक्टली मीनिंग तो सेम ही हो रहा है। मैं तभी तो कह रही हूँ इतने डिटेल में नहीं आएगा वैसे एग्जाम में। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, ओके। So accordingly, we will not express an opinion or conclusion or provide any adjustment on any financials. और प्रोवाइड एनी अश्योरेंस। Okay, last, our engagement cannot be relied upon to identify or disclose any financial statement misstatement, including those caused by fraud or error, or to identify or disclose any wrongdoing within the entity or non-compliance with laws and regulations. So, आपको क्या wrong doing ये word use करना है, या significant risk, material mistake, internal control weakness, management override, collusion or internal control weakness? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। सबमिट। ठीक है, चेक हाँ। करना कुछ, नहीं नहीं। लेकिन एग्जाम में इतनी जल्दी नहीं करनी। हाँ वो है। अच्छे से पढ़ के 58% करेक्ट है आपके, बाकी गलत है। आर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। उसके बाद बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, कौन सा है ये, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू आना था। ओके। हाँ, हम ऑप्शन वही ढूंढ रहे थे बेसिकली, प्रोवाइडेड बाय हाँ मैनेजमेंट, बट वो ऑप्शन नहीं था तो हमने प्रिपेयर्ड कर दिया। ठीक है, ये ऑप्शन भी था प्रोवाइडेड बाय यू, तो ये आना था आपका। ठीक है। के बाद एंड कॉम्प्लाई विद एआईसीपीए के स्टैंडर्ड्स थे, कोड ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, आप कह ही रहे थे। और इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे आपके। खाली ओके। खाली इंटीग्रिटी इंटेग्रिटी और ऑफ। ऑब्जेक्टिविटी नहीं। ओके, उसके बाद एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ठीक है, प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ठीक है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नहीं है यहाँ। अब क्या आएगी, एनी रॉन्ग डूइंग ही आएगा वर्ड। एनी रॉन्ग डूइंग का मतलब क्या होता है? कि अगर कुछ भी मतलब गलत हुआ है, कोई रॉन्ग डूइंग लाइक कुछ गलत करा है तो उसको डिस्क्लोज करना। So your like our engagement cannot relied upon to identify or disclose any, कि आपके engagement में आप कोई like misstatement नहीं ढूंढ रहे basically. ठीक है। Okay. यस। So this was about your engagement letter. आपका engagement letter आ सकता है क्योंकि बहुत बार आया है ये एग्जाम में,
कि इसमें वर्ड ढूंढो, मिस्टेक्स ढूंढो। ओके। ठीक है, तो आप पर इतने डिटेल में मतलब वर्डिंग नहीं आएगी जैसे आपकी ये फर्स्ट पैराग्राफ में था, स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो होंगे, इन सब से रिलेटेड आएगा कि जैसे स्टैंडर्ड्स बताओ अगर ये एंगेजमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जैसे अभी आपका आया था कैश फ्लो, और कैश फ्लो 2 बार दे रखा था, ठीक है। तो ये सब सब हो सकते हैं। कल से मैं अभी यूनिट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा। अभी यूनिट 2 की भी हम कुछ सिमुलेशंस देखेंगे, अभी हाँ हाँ। एग्जिबिट रिलेटेड एक दो देखनी पड़ेंगी और भी। मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए एमसीक्यू में, वो जो एक डिमांड एंड सप्लाई वाला जो चैप्टर है ना, हाँ मतलब उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो ठीक है, समझ बता। मतलब क्वेश्चन समझ आ जाता है बट वो आंसर्स के साथ वो नहीं हो रहा है मेरे से। अच्छा तो नेक्स्ट ठीक है लेक्चर में आपको। ऐसा होगा तो हाँ यूनिट 2 ले लेंगे हम। ठीक है, ओके, जो भी आपको डाउट भी होंगे तो वो भी आप बता देना मुझे। हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।